Students, so previous classes completed. Example number 23 is completed. So now start example number 24. Example 24 is example number 24. Question is obtain the inverse of the following matrix using elementary operation. This is important question for board point of view. Question is obtain inverse of the following matrix using elementary operation. Previous class I already told elementary operation, that is using only one operation, that is either row operation or column operation. So here method not mentioned here, that is, so you decide using any row operation or column operation. So previous example 23 I use row operation, so again repeat I row operation, then next I use by column operation. So obtain the inverse following matrix using elementary operation. So first suppose example 24, suppose let A is equal to matrix given 0 1 2 1 2 3 and 3 1 1 using row operation. So previous class I discussed also, for row operation start from, since A is equal to IA, I is the identity matrix. This is important question for board point of view, so read carefully. A is equal to A into I, since I is the identity matrix, so I into A is equal to A. That is for inverse, जहाँ भी inverse find करना होगा using elementary operation, then first line use A is equal to IA, then put value A equal to 0 1 2 3 1 1 sorry 1 2 3 3 1 1, and I is the identity matrix of 3 cross 3, that is same order of A. So 1 0 0 0 1 0 0 0 1, this is the identity matrix into A. This is the first line. मेन देखो एम क्या करना है, आप लेफ्ट साइड जो मैट्रिक्स हैं, दिस मैट्रिक्स कन्वर्ट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट इज जस्ट लाइक दिस. इसे कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में. सो यूजिंग एनी वन ऑपरेशन, आइदर रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन. इफ यूज रो ऑपरेशन देन स्टार्ट ए इज इक्वल टू आई इंटू ए. सो make this matrix is unity matrix, that is unit matrix. For unit matrix, that is first element make be 1. Here first element make 1 using operation and make first element 1. आप रो ऑपरेशन यूज करोगे और इस फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाना है. कैसे 1 बनाओगे? Here R2 ध्यान से देखो, R2 फर्स्ट एलिमेंट 1. सो इफ चेंज R1 and R2, if R1 and R2 be interchange, then this becomes 1. आपको फर्स्ट एलिमेंट ये 1 बनाना है. सो इंटरचेंज R1 and R2, R1 change into R2 and R2 change into R1. सबसे फर्स्ट में ये 1 फर्स्ट एलिमेंट को हमें बनाना है 1 आइडेंटिटी एलिमेंट्स. इस मैट्रिक्स को हमें कन्वर्ट करनी है आइडेंटिटी के फॉर्म में. तो आइडेंटिटी दैट इज फर्स्ट एलिमेंट 1. सो यूज ऑपरेशन R1 चेंज टू R2, दैट इज R1 चेंज टू R2 एंड R2 चेंज टू R1. सो R1 to R2 both are interchange. So this becomes here 1 2 3 because R2 change into R1. Or this can also written R2 change into R1 and R1 change into R2, both are same.
So R2 change into R1, that is R1 is R2 is 1 2 3. Next R1 change into R2, that is 0 1 2, and R3 is same. So these two row are interchange. R2 change to R1 and R1 change to R2. Similarly, same operate right side. This equal to, both are interchange. So 0 1 0, this R2 change to R1 and R1 change to R2. So 1 0 and 0. R3 same, 0 0 1 into A. यह ध्यान देना है कि राइट साइड में A का वैल्यू पुट नहीं करना है. Important point, not put the value of A in the right side. Put value A only left side and the value of identity matrix A same note करना है, इसका वैल्यू पुट नहीं करना है. Okay, so first element make 1 using here starting row operation. So इस पूरे क्वेश्चन में रो ऑपरेशन यूज करेंगे, कहीं कॉलम का यूज नहीं होना चाहिए, ओनली यूज रो ऑपरेशन. नेक्स्ट क्या करनी है, फर्स्ट एलिमेंट तो बना दिए 1, इस एलिमेंट इस मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट 1. अब क्या करना है, इस 1 के 1 दैट इज ये R1 का फर्स्ट एलिमेंट है, दिस एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट इन R1. अब क्या करनी है, इस R1 के हेल्प से R2 और R3 दोनों के एंट्री को 0 करनी है. आप जिस एलिमेंट को 1 बनाए हो उस 1 के हेल्प से R2 एंड R3 दोनों की एंट्री को 0 करना है. ध्यान दोगे, कुछ भी ऑपरेशन इंटरचेंज करोगे तो कन्फ्यूजन बढ़ जाएगी और ये इन्वर्स नहीं निकलेगा. आप मेरे पॉइंट ध्यान से सुनोगे. फर्स्ट एलिमेंट 1 बना दिए, इस 1 के हेल्प से ही दोनों को 0 करना है, R2 को 0 करना है और R3 को 0 करना है. और अब देखोगे कि R2 ऑलरेडी पहले से 0 बना हुआ है, इस 1 के नीचे जो R2 का एलिमेंट है 0 बना हुआ है, इस 1 के नीचे R3 इसे 0 बनाना है. जिस मेथड से बना रहे हैं स्टार्टिंग वैसे ही करना है, इंटरचेंज करोगे तो इनवर्स में कन्फ्यूजन बढ़ जाएगी. चलिए आप पहले जैसे बता रहे हैं ध्यान से सुनोगे. इस R1 के हेल्प से, दैट इज 1 के हेल्प से ही इस R3 को 0 करना है. R2 ऑलरेडी 0 बना हुआ है तो R3 को 0 करेंगे. सो यूज ऑपरेशन R3 को 0 करना है. सो R3 चेंज इनटू इस 1 के हेल्प से इसको 0 करना है. कैसे करोगे, क्या करेंगे, 0 होगा. इसमें क्या मल्टीप्लाई करें, सबट्रैक्ट करेंगे. इफ मल्टीप्लाई बाय 3 दिस बिकम्स 3 एंड देन सबट्रैक्ट बिकम 0. सो R3 में क्या करना है, R1 में 3 से मल्टीप्लाई करके और माइनस कर दो. आप 1 के हेल्प से जिसको भी 0 करना है उसमें उसी से मल्टीप्लाई करके और माइनस कर देना है 0. तो इस 3 को 0 करना है तो R1 में 3 से मल्टीप्लाई करके और माइनस कर देंगे, 0 हो जाएगा. सो R3 चेंज टू R3 माइनस 3 R1, बिकॉज अब इसी 1 के हेल्प से ही इसको 0 करना है. तो इस 1 में 3 से मल्टीप्लाई करके यदि माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 0. सो दिस इम्प्लाई R1 सेम 1 2 3 0 1 2 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे हो. इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3, इसमें माइनस करेंगे 0. या 3 मल्टीप्लाई करोगे 6, माइनस करेंगे तो -5. 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9 और माइनस कर रहे हैं, दैट इज -8. सेम ऑपरेशन राइट साइड इज इक्वल टू 0 1 0 1 0 0. आप R3 में ऑपरेशन यूज कर रहे हो, क्या किए, R1 में 3 से इंटू करके माइनस करना है. 3 से इंटू माइनस सेम एलिमेंट, 3 से इंटू माइनस -3, 3 से इंटू माइनस दैट इज 1 इंटू A. तो आप पहले 1 बनाना है और इस 1 के नीचे जो 1 के नीचे हैं, इस जो 1 के नीचे एलिमेंट हैं इन दोनों को 0 करना है. नेक्स्ट ऑपरेशन, फर्स्ट 1 बनाए, देन डायगोनली मेक एलिमेंट्स यूनिटी, दैट इज 1
दिस इज द डायगोनल एलिमेंट, दिस इज द डायगोनल एलिमेंट। आप डायगोनल को बनाओगे 1 1 और उसी 1 के हेल्प से उसके नीचे ऊपर जो भी एलिमेंट्स हैं नेक्स्ट रो में उसको 0 करना है। ध्यान से पॉइंट को सुनोगे। तो पहले आप 1 एलिमेंट बना दिए R1 और इस 1 के हेल्प से दोनों को 0 कर दिए। नेक्स्ट R2 को 1 बनाएंगे। R2 यह एलिमेंट को बनाना है 1, इस एलिमेंट को 1 बनाना है। ऑलरेडी पहले से 1 बना हुआ है। यदि 1 यहाँ पे नहीं होता, सपोज करो रहता 5 और उसको 1 बनाना है, तो आप 1 बनाने के लिए 5 से ही डिवाइड कर देंगे। सपोज करो यहाँ पे 5 होता, उसको 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए 5 से डिवाइड कर दो। सो डिवाइडेड बाई 5 बिकम्स 1। हियर ऑलरेडी एलिमेंट्स 1 बना हुआ है। सो अब इस 1 के हेल्प से इसके ऊपर नीचे दोनों को 0 करना है। आप ये R2 का एलिमेंट 1 है, R2 के हेल्प से R1 को 0 करेंगे, इसको भी 0 करना है और इसे भी 0 करना है, दोनों को 0 करेंगे। तो यूज ऑपरेशन। सो R2 के हेल्प से R1 को 0 करना है और R3 को 0 करना है। सो यूज ऑपरेशन इन R1 में ऑपरेशन यूज कर रहे हो। इस एलिमेंट को बनाना है 0 विद द हेल्प ऑफ 1। इस 1 के हेल्प से इसको 0 बनाना है। क्या लगाओगे ऑपरेशन? R1 में ऑपरेशन लगाना, चूँकि चेंज इनटू R1, इस एलिमेंट को बनाना है 0। सो यूज ऑपरेशन इन R1। अब कैसे बनाओगे 0 1 के हेल्प से? मल्टीप्लाई बाई 2 एंड माइनस, मल्टीप्लाई बाई 2 एंड माइनस। सो R1 चेंज टू R1 माइनस 2R2। R2 के हेल्प से ही बनाना है। अब चूँकि R2 एलिमेंट को 1 बनाए हो, जिस रो के एलिमेंट को 1 बनाते हैं उसी के हेल्प से नीचे ऊपर दोनों को 0 करेंगे। तो आप इस 1 के हेल्प से 2 से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस, ये 0 हो जाएगा। इसी 1 के हेल्प से इसे भी 0 बनाना है, दैट इज़ R3। आप R3 को 0 बना दो। सो एंड R3 चेंज इनटू, देखो मैसेज आया चल रहा है, R3 चेंज टू, R3 में 0 कर रहे हैं। तो आप इस 1 में यदि आप 5 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें ऐड कर दें तो 0 हो जाएगा। इसमें यदि 5 से मल्टीप्लाई कर दो R2 में और इसमें प्लस कर दें, जो कि -5 है, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करके प्लस कर देंगे, बिकम 0। सो R3 चेंज टू R3 प्लस 5 इंटू R2। आप मैक्सिमम 2 ऑपरेशन यूज करोगे। इस टाइप का ऑपरेशन यूज करना है तो मैक्सिमम 2 ऑपरेशन यूज कर सकते हैं एक साथ में। आप दोनों में, या R1 और R3, यहाँ पे आप R1 ऑपरेशन लगाए हो और R3 में ऑपरेशन लगाएं। R1 को इस एलिमेंट को 0 करना है और R3 को इसको 0 करना है, और दोनों को 0 करना है विद द हेल्प ऑफ R2, दैट इज़ 1 के हेल्प से। तो जिसे भी 0 करना हो 1 ने उसे मल्टीप्लाई करके और ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, सो नेक्स्ट R1 चेंज किए हैं। R1 ने क्या किया हो, R2 में 2 से मल्टीप्लाई करके और माइनस, या R2 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे और माइनस, बिकम्स आ गया 1। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस, दैट इज 0। 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 और माइनस, दैट इज -1। R2 सेम, 0 1 2। R3 में क्या कर रहे हो, R2 में 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हो। इस R2 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करोगे 0 इंटू 5 0, और इसमें आप ऐड करोगे 0 आ गया। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, 0 आ गया। 5 से मल्टीप्लाई करोगे 10 और इसमें आप ऐड कर रहे हो तो वैल्यू आ गया 2। दिस इक्वल टू, सेम ऑपरेशन राइट साइड। R1 क्या कर रहे हैं, R1 में R2 में 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे हो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस, तो यह आ गया -2। 2 से मल्टीप्लाई माइनस, दैट इज़ 1। 2 से मल्टीप्लाई माइनस, दैट इज़ 0। और R2 सेम है, तो 1 0 0। R3 में क्या ऑपरेशन यूज़ किया है, R2 में 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हो। इस R2 में 5 से मल्टीप्लाई करके, दिस चेक दैट दिस एलिमेंट R1 चेंज टू R1
R1 here 1, R1 1, so 1 minus 2 into 0, that is 1. So 1 0 0. Next R3 0, here R3 5 into R2, R3 change to R3 प्लस 5 इंटू R2, यानी R2 में 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो और इसमें प्लस कर रहे हैं, तो R2 में 5 से मल्टीप्लाई करोगे ये 5 हो गया, इसमें प्लस करेंगे दैट ये हो गया 5, 5 से मल्टीप्लाई करोगे और प्लस करेंगे दैट इज -3, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस करेंगे सेम एलिमेंट आ गए और इनटू ए। तो आप 1 बनाएंगे, पहले 1 बनाए, 1 के ऊपर कोई एलिमेंट नहीं है तो नीचे दोनों को 0 कर दिए, फिर नेक्स्ट डायगोनल 1 बनाए, इसके नीचे ऊपर दोनों को 0 करना है, फिर नेक्स्ट डायगोनल ये आ गया 2, अब इस 2 एलिमेंट को बनाना है 1। सो नाउ मेक दिस थर्ड दैट इज R3 A33 थर्ड एलिमेंट बी 1। तो 1 बनाने के लिए क्या करना है, जिसे 1 बनाना हो डिवाइडेड बाई सेम एलिमेंट, आप 2 को 1 बनाओगे डिवाइडेड बाई 2 बिकम्स 1। सो नेक्स्ट ऑपरेशन इज R3 चेंज टू R3 डिवाइडेड बाई 2 बिकम्स 1। जिस एलिमेंट को आपको 1 बनाना है उसको उसी से डिवाइड कर दो। सो R3 चेंज टू R3 बाई 2, सो दिस बिकम्स 1 0 -1 0 1 2 0 डिवाइडेड बाई 2, ओनली वन ऑपरेशन R3 डिवाइडेड बाई 2, सो 0 0 2 बाई 2 दैट इज 1। दिस इक्वल टू R1 सेम -2 1 0 1 0 0 5 -3 सॉरी R3 डिवाइडेड बाई 2, so here R3 divided by 2 that is 5 by 2 minus 3 by 2, this becomes 1 by 2 और into A। आप इस एलिमेंट को 1 बना दिए, इस 1 के हेल्प से, नीचे कोई एलिमेंट नहीं है, इस 1 के हेल्प से इसके अपर साइड जितने एलिमेंट हैं सभी को 0 बनाना है। सो यूज दिस 1 एलिमेंट एंड मेक्स 0 दिस 2 एंड -1 दोनों को 0 बनाना है। तो पहले आप यह 0 दैट इज दिस एलिमेंट इन R1, तो आप R1 को इसके हेल्प से बना रहे हो 0 और कोई ऑपरेशन चेंज करके नहीं लगाओगे। जिसको आप 0 बना रहे हो वह जिस एलिमेंट को पहले आप 1 बनाए हो उसी 1 के हेल्प से ही 0 करना है। तो आप इस 1 के हेल्प से दैट इज R3 के हेल्प से इसको 0 करना है। क्या करें इसमें, ये 1 इसमें यदि ऐड कर दोगे 0 आ जाएगा, R3 के एलिमेंट इसमें ऐड करेंगे 0, तो ऑपरेशन क्या यूज़ करें, R1 चेंज इंटू R1 प्लस R3, आप R1 R3 को ऐड करोगे ये 0 हो जाएगा। इसी 1 के हेल्प से इस 2 को भी 0 करना है, दैट इज़ R2 को भी 0 करना है। क्या ऑपरेशन यूज़ करें R2 में, एंड R2 चेंज इंटू R2 -2 इंटू R3, इस R3 में 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दोगे ये आ जाएगा 0। सो दिस इम्प्लाई R1 यूज R1 प्लस R3, इसको आप ऐड कर दो 1 आ गया, इसे इसमें ऐड करो 0, इसे इसमें ऐड करेंगे 0। R2 ऑपरेशन R3 में 2 से मल्टीप्लाई करके और माइनस कर रहे हो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस बिकम 0, 2 से मल्टीप्लाई -1 2 से मल्टीप्लाई -0 एंड R3 सेम, दिस इक्वल टू सेम राइट साइड प्रॉपर्टी R1 प्लस R3 ऐड, R1 R3 को ऐड करना है, R1 और R3 को ऐड करना है, यह फ्रैक्शन वाला ऐड है तो आप कहीं लेफ्ट साइड में अच्छे से नोट करके प्लस करोगे, इसमें शॉर्ट फॉर्म में प्लस मत करना, इसमें मिस्टेक होता है। मन में कैलकुलेशन नहीं करनी है, रफ साइड में इसको नोट करके तो ऑपरेशन यूज करेंगे। ऑपरेशन क्या है यहाँ पे, R1 प्लस R3, so R1 is -2, this is -2, R3 is 5 by 2, so plus 5 by 2, this is R1 plus R3, taking LCM, so -4 plus 5 that is 1 by 2. Next R1 plus R3 that is 1 minus 3 by 2, 1 minus 3 by 2, here minus, so simplify it, then -1 by 2, R1 plus R3 becomes 1 by 2. Next R2
R2 also change, R2 minus 2 into R3. So R2 first element 1, first element be 1. So R2 1, R2 minus 2 R3, minus 2 into R3, R3 is 5 by 2. This becomes cancel. So this one is minus 4. Next R2, next element is 0. So 0 minus 2 R3, R3 is minus 3 by 2. So 2 into minus 3 by 2, this cancel, and minus minus plus, that is this becomes is 3. Next 0, this is a 0, minus 2 into R3, R3 1 by 2, cancel, so minus 1, and R3 same, that is 5 by 2, minus 3 by 2, 1 by 2, and A. So this becomes identity matrix. This is identity, and the right side matrix, this matrix is the inverse of A. This is the inverse of A. So A inverse is equal to, this is the inverse of A. So A inverse is equal to 1 by 2 minus 1 by 2, 1 by 2, correct answer also. So minus 4, 3, minus 1, and next 5 by 2, minus 3 by 2, and 1 by 2. This is the inverse of A.